session is extremely relevant to us as industrial internship and industry connect is critical in today's world. It is my pleasure to introduce Mr. Kshitij Trivedi, Assistant General Manager at Index B, Government of Gujarat. He plays a key role in investment promotion and investor facilitation for the state and leads the International Cooperation Unit at Index B, contributing to the vibrant Gujarat Global Summits. With nearly 10 years of experience in business development and marketing in the IT sector, Mr. Trivedi has led international sales to Tokyo, Johannesburg, and Nairobi. He is an IT engineer and holds an MBA in marketing. Passionate about soft skills and communication, he is pursuing a PhD focused on bridging the industry-academia gap in Gujarat's tech sector. He actively contributes to the various educational institutions, conducting workshops on communication and employability skills. We are honored to have you here with us today. Now I would like to call Dr. Saroj Shekhawat to welcome Mr. Kshitij Trivedi with a bouquet of flowers. Sir. तू है तो दिल धड़कता है, गाओ ना मारा वाला। तू है तो सांस आती है, घर नहीं लगता, तू है तो डर, गाओ ना मारा वाला। डर नहीं लगता, आगळ जोड़े गाओ तो मजा आवे। फरीथी फरीथी गाओ। 1 2 3 स्टार्ट। तो लगता है तू है तो सांस आती है, तू है तो डर नहीं लगता। ओके, थैंक यू। This was nothing but my way of checking if the microphone is working or not. All right. As madam introduced me, I am a soft skills and communication skills coach first. Industries and student interaction comes second. But having said this, I am extremely thankful to start with to the management of GSFC University to consider me capable of delivering a lecture on Know the Industries of Gujarat subject. As madam has introduced me, I am responsible for generating and attracting and promoting investment in the state of Gujarat. How many of us are Gujaratis in the house? Oh, many of us. And anyone who cannot understand Gujarati at all? Okay, few of us. No problem. So we'll stick to English as a comfortable and accepted form of communication language. ठीक है? हमारे ना एक एक्स एमडी है श्री भाग्येश झा साहब, शायद किसी ने कोई वीडियो या कुछ देखा हो, तो उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल क्रोनोलॉजी दिया है अबाउट द लैंग्वेजेस. व्हाट ही सेज इज गुजराती છે ને ગુજરાતી એ મારી માતા છે. અગ્રી? માતૃભાષા. હિન્દી છે ને હિન્દી એ મારી માસી છે. સંસ્કૃત છે શું થાય મારી દાદીમાં, મારા બા થાય. અને ઇંગ્લિશ છે ને સાહેબ એ મારી ઘરના બાજુમાં પહેલે માળે રહેતી એક ખૂબસૂરત પડોશન છે. યુ ટેલ મી, મારી પડોશન ગમે એટલી ખૂબસૂરત હોય, શું એને હું મારી માનો દરજ્જો આપી શકું? તો ગુજરાતી અને હિન્દી મારા માટે એ છે. ઓલરાઇટ, બટ હેવિંગ સેડ ઓલ ઓફ ધીસ, English is generally accepted form of communication. You all are studying in one of the reputed universities of Gujarat, so we'll stick to English as a form of communication from both sides, you to me and myself to you. Agree? Chalo, let's start. So the subject which is allotted to me, Know the Industries of Gujarat. In today's very short presentation, we will get to know what are the wonderful facts and figures. लोग कहते हैं गुजरात is one of the foremost
attractive states of attracting investment across the country of India. ऐसा क्यों लोग बोलते हैं? सबसे ज़्यादा FDI अगर गुजरात में आता है, आप न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ते होंगे, तो why is it so that Gujarat is able to attract the maximum amount of FDI across the India over the last 20-25 years? ऐसा क्यों है वो हम थोड़ी जानने की कोशिश करेंगे. Fine? Okay. I have to come closer. Okay. So Gujarat, as we all know, is popularly known as the growth engine of India. This is what we also assume, and we also how we promote Gujarat as far as the investment attraction is concerned. पूरे इंडिया में जितना भी FDI आता है उसका एटलीस्ट 12 to 18% कम्स अलोन इन द गुजरात. पूरे इंडिया का जितना भी GDP है, तो आवर कंट्रीब्यूशन, द स्टेट ऑफ गुजरात कंट्रीब्यूट्स टू अराउंड 8.2% इन द एंटायर स्टेट ऑफ इंडिया. और उस 8.2 का बॉस अपना टारगेट, गवर्नमेंट ने बोला कि अपना टारगेट बहुत सिंपल है, 2 साल में उस 8.2 को हमें सिर्फ और सिर्फ 10% करना है, ज़्यादा नहीं करना. तो वी हैव सेट वेरी रियलिस्टिक, वेरी कंफर्टेबल टारगेट, बट येट जैसे बहुत अच्छे पोएट ने कहा है कि आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप and miles to go before I sleep. So there is a lot of hard work which the government is working, which the industry of Gujarat is working to convert this 8.2% in the next 2 years and take it to comfortably 10%. As far as industrial output is concerned, entire India's 18% of industrial output comes from Gujarat. As far as number of factories are concerned, we have got the highest number of factories in terms of manufacturing powerhouses in the state of Gujarat in the entire national scenario. Exports जितना भी होता है उसका करीब 30% exports जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ गुजरात से होता है. So our seashore, which is around 1600 kilometer long seashore, is contributing in terms of constantly increasing exports to the state of Gujarat. अब हम कुछ फैक्ट्स और फिगर्स जानने की कोशिश करते हैं कि सो दिस इज द स्टोरी लाइन ऑफ टुडे. गुजरात के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या क्या है, इंडस्ट्रीज ऑफ गुजरात क्या कहता है, हाउ हैज दी, बिकॉज वाइब्रेंट गुजरात, एज वी ऑल माइट नो, आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर ऑल वेरी फेमिलियर विद वाइब्रेंट गुजरात. तो वाइब्रेंट गुजरात इज वन ऑफ द एपेक्स इवेंट which is helping the investment attraction in Gujarat. तो how has the brand evolved? हम लोग जब MBA के कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, मैनेजमेंट स्कूल के बहुत सारे हैं, राइट? तो MBA के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमको केस स्टडी पढ़ाया जाता है कि हाउ हैज़ द ब्रांड ऑफ मैकडोनल्ड्स इन्वॉल्व, हाउ हैज़ द ब्रांड ऑफ होंडा इन्वॉल्व, मारुति कैसे इन्वॉल्व हुआ. तो हम लोग अपने ब्रांड के बारे में कभी बात नहीं करते. तो आई एम हियर टू काइंड ऑफ एंडोर्स अवर ओन ब्रांड. गवर्नमेंट का जो ब्रांड है वो पिछले 20 सालों में कैसे इवॉल्व हुआ है, वो स्टोरी क्या है छोटी सी. एंड जो 2024 में लास्ट वाइब्रेंट गुजरात हुआ उसके बेसिक स्नैपशॉट फिगर क्या क्या है, गवर्नमेंट बेसिकली क्या क्या करता है. So these are some of the macroeconomic indicators. As I said, 18% of India's industrial output, cumulative FDI जो आया है, that is around $55 billion. 8.2% of GDP, उसको कहाँ ले जाएंगे हम पिछले अगले 2 साल में? 10%. Then 35.3% share in manufacturing, close to 30% of share in national exports, and 1.5+ million registered micro, small and medium enterprises are there in Gujarat itself. Alright, ये चीज़ जो है वो आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहने वाला है. Okay, so we are going to discuss basically how has this sectors forming this entire GDP growth, और गुजरात में इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ डेवलप्ड है और क्या क्या डेवलप हुआ है, कैसे कैसे डेवलप हुआ है. ओके ओके, अब हमें बार बार स्लाइड चेंज करने की जरूरत नहीं, बिकॉज दिस इज ब्यूटीफुल स्टोरी लाइन, नथिंग एल्स. एक के बाद एक सेक्टर पकड़ के हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? विथ मी एवरीवन. टू स्टार्ट विथ ऑटोमोबाइल. Gujarat per se is very popular in the fraternity of Europe and America as one of the automated vehicles manufacturing hub of India.
तो आप लोग अगर मैप ऑफ गुजरात स्टडी करेंगे, ये थोड़ा सा पुराना मैप है। कुछ दिन पहले ना गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन निकाला है, एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया है, पर वो मैप अभी तक मेरे पास आया नहीं, तो ये थोड़ा सा पुराना मैप है। पर अगर आप मैप को क्लोजली फॉलो करेंगे तो ऑटोमोबाइल हब जो है वो ये वाला जो एरिया है, इसको हम लोग पॉपुलरली नोन एज मांडल बेचराजी। 2007 में एक बहुत बड़ा गाड़ी का प्लांट लगा था। कैन एनीवन नेम कौन सी गाड़ी थी वो? 2007 देयर वाज अ ह्यूज अनाउंसमेंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट कि यहाँ पे टाटा नैनो को प्लांट लगेगा। याद है किसी को? साणंद के नज़दीक। तो साणंद किधर है? आपका मांडल बेचराजी स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में। अब उस वक्त एज अ स्टूडेंट, आई वॉज अ स्टूडेंट एट दैट टाइम, मेरे दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि टाटा नैनो का जो प्लांट लगा, वाई ओनली साणंद, वाई नॉट सूरत, वडोदरा, राजकोट, कच्छ? गुजरात में तो बहुत सारी जगह है ना। बट इट वॉज अ वेरी स्ट्रैटेजिक मूव इन टर्म्स ऑफ कि अगर आप सोचो फ्रॉम इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव या फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप पर्सपेक्टिव, तो आपको किसी भी यूनिट बनाने के लिए क्या चाहिए? उसका रॉ मटेरियल चाहिए। मान लीजिए मुझे कार बनाना है, तो मुझे क्या चाहिए? रबर चाहिए फॉर व्हील्स। आई विल नीड छोटे छोटे एंसिलरी यूनिट्स, नट बोल्ट्स हो गए, इंजिन्स हो गया, वो सब चाहिए मुझे। तो वो सारे इंजिन्स कहाँ पे मिलेंगे मुझे? ये जो राजकोट, जामनगर, मोरबी, अमरेली, ये जो एरिया है ना, दैट बेल्ट इज बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग अ लॉट ऑफ ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी यूनिट्स। अगर मेरा गाड़ी मेरे प्लांट में मैं साड़न के नज़दीक बनाता हूँ, फिर उसको मैं क्या करूँगा? एक्सपोर्ट करूँगा। तो गुजरात के पास है ना सर, पीपावाव पोर्ट है, कांडला पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट है। दिस एरिया पर से इज इन वेरी मच सेंटर टू द एंटायर ज्योग्राफी ऑफ गुजरात। Perhaps that is the reaction, that was the relationship between why exactly government has chosen this area to be one of the automobile manufacturing hubs. और आपने शायद सुना हो एंकर यूनिट, कुछ टर्म सुना है? एंकर यूनिट एक आता है, उसके बाद बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स आते हैं। वैसा ही स्टोरी यहाँ पे हुआ। 2007 टाटा नैनो, मतलब टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज एस्टेब्लिश्ड अ मैन्युफैक्चरिंग कार प्लांट इन साणंद। आज सिनेरियो क्या है? वी हैव टाटा, वी हैव फोर्ड, वी हैव मारुति सुजुकी, वी हैव होंडा मोटरसाइकिल्स, वी हैव हीरो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड वी हैव एमजी. So all these 5-6 giant manufacturers of car manufacturing or industry in India have got their own manufacturing capacities in Gujarat itself. इसके बाद अगर हम इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की बात करें, तो देर इज वन वंडरफुल बिल्डिंग इन गांधीनगर इटसेल्फ विच टॉक्स अबाउट IACE, उसको बोलते हैं IACE, विच इज इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस. तो यहाँ पे जहाँ भर का रिसर्चर्स आते हैं, जहाँ भर का रिसर्च होता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, गुजरात की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को पर से हम लोग कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और कितना आगे जल्द से जल्द ले जा सकते हैं. तो वी हैव गॉट लेबर, वी हैव गॉट रिसर्च एंड वी हैव गॉट मैन्युफैक्चरिंग. तो इंडस्ट्री आगे बढ़ेगा ना हमारा, राइट? तो दैट इज हाउ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन गुजरात हैज फ्लरिश्ड. उसके बाद हम लोग आते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी पे. तो ऐसा बोला जाता है कि एज फार एज डायमंड इज कंसर्न, पूरे डायमंड के लिए पूरे भारत भर में सिर्फ एक ही सिटी का नाम आता है. वो नाम क्या है? सूरत. वेरी गुड. तो डायमंड्स जो है 72% ऑफ प्रोसेस्ड डायमंड्स इज हैपनिंग ओनली थ्रू गुजरात. 80% ऑफ डायमंड एक्सपोर्ट्स इज हैपनिंग ओनली इन सूरत ऑफ द एंटायर इंडिया में बात कर रहा हूँ. सेकंड नंबर पे बेल्जियम, साउथ अफ्रीका, वो सब सेकंड थर्ड नंबर पे हैं. जो पॉलिशिंग इंडस्ट्री है आजकल, एक डायमंड, इफ यू आर गेटिंग लिटिल अवेयर अबाउट हाउ डायमंड इंडस्ट्री एंड हाउ एंटायर इंडस्ट्री इज प्रोग्रेसिंग फॉरवर्ड. तो पहले क्या हुआ करता था कि डायमंड यूज्ड टू बी पॉलिश्ड. આપણે નહીં ગુજરાતીમાં કે હીરા ઘસવાના કારીગરો હતા, રાઈટ? નાउ हीरा घसवाना मैनुअल प्रोसेस इज गेटिंग लिटिल बिट डाउन. नाउ वी आर इन दी एरा ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स. मतलब एक लैब बनाया जाएगा जिसके अंदर सारा डायमंड पॉलिशिंग होगा. तो पूरा सूरत जो है, इज एंटायर सूरत डायमंड इंडस्ट्री इज स्लोली एंड ग्रेजुअली ट्रांसफरिंग फ्रॉम मैनुअल पॉलिशिंग ऑफ डायमंड्स टू लैब ग्रोन डायमंड्स. उसमें भी लीड कौन करेगा आगे जाके? गुजरात ही करेगा.
ऑलराइट, इसके अलावा सूरत के अंदर ही वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स बना है विच इज पॉपुलरली नोन एज डायमंड बुरस। आपने शायद कहीं न्यूज़ में सुना है कहीं पे, राइट? तो वो भी हमारे सूरत में ही है। नेक्स्ट, सिरामिक्स। एज फार एज इंडिया सिरामिक सेक्टर इज कंसर्न, सिर्फ एक नाम आता है, वो क्या है? एनी आइडिया? थोड़ा जोर से। मोरबी। इसमें गलत आंसर नहीं हो सकता। हाँ, कोई ऐसा नहीं चिल्लाएगा कि सूरत, वो मोरबी पता है तो ये लोग बोलेंगे, राइट? तो एंटायर इंडिया में से 90% ऑफ सिरामिक प्रोडक्ट्स इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड एंड एक्सपोर्टेड बाय ओनली एंड ओनली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मोरबी। ये यहाँ पे है कहीं पे, ये रहा मोरबी, राइट? तो वी हैव गॉट नेचुरल ज्योग्राफिक एडवांटेज। जो सिरामिक्स बनाने के लिए जो मिट्टी चाहिए, वो मिट्टी कहाँ मिलती है? सिर्फ और सिर्फ पूरे भारत में मोरबी में ही मिलता है। तो आपका जो क्रॉकरी बनता है ना, घर पे क्रॉकरी होगा, क्रॉकरी बनता है, आपका ग्लास बनता है, आपका टाइल्स बनता है, आपका सैनिटरी वेयर बनता है, तो देर आर वेरी हाई चांस कि आपके घर में आपके जो भी एंसिलरी यूनिट्स में जो भी सिरामिक्स प्रोडक्ट लगे हैं, दैट विल बी मैन्युफैक्चर्ड एंड एक्सपोर्टेड और बॉट फ्रॉम मोरबी ओनली। इसके अलावा चाइना में एक एरिया है ज़ुआंगझोउ करके, दैट इज प्रोबेबली वर्ल्ड नंबर 1 एरिया। मोरबी जो है वो वर्ल्ड नंबर 2 है इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी। सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, पूरे मोरबी में अराउंड 115 मतलब 1500 से भी ज़्यादा छोटे मोटे यूनिट्स हैं, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है? पॉटरी, यानी कि सिरामिक्स का अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाना। तो मोरबी इन अ वे इज पॉपुलरली नोन एज सिरामिक कैपिटल ऑफ इंडिया। इसके अलावा हम बात करते हैं टेक्सटाइल्स की। तो जो कपड़े आपने पहने हैं वो तो टेक्सटाइल्स का एक फॉर्म हो गया, राइट? जस्ट ए फॉर्म ऑफ टेक्सटाइल्स, उसको हम लोग बोलते हैं मैन मेड फैब्रिक। बट इसके अलावा अहमदाबाद और सूरत, ये 2 शहरों में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फ्लरिश लाइक एनीथिंग, ओके? एंड देन अहमदाबाद पर से इज नोन एज डेनिम कैपिटल ऑफ इंडिया, बिकॉज जितना भी डेनिम आप पहनते हो, यू नो, ब्लूइश जैकेट्स, आपके ब्लूइश जीन्स हो गए, आपके ब्लूइश डेनिम शर्ट्स हो गए, तो जितना भी डेनिम आप पहनते हो, देयर आर वेरी हाई चांसेस दैट डेनिम इज मैन्युफैक्चर्ड एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम द सिटी ऑफ अहमदाबाद ओनली। तो हम लोग नहीं बोलते पुराना अहमदाबाद, ओल्ड अहमदाबाद। तो देयर आर लॉट ऑफ वंडरफुल मैन्युफैक्चरिंग डेनिम यूनिट्स इन अहमदाबाद इटसेल्फ। इसके अलावा आपका जो मैनमेड फैब्रिक्स होता है, तो उसमें अराउंड 31% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शेयर इज़ फ्रॉम अहमदाबाद ओनली। सूरत में भी बहुत सारे कॉटन जीनिंग यूनिट्स हैं, बहुत सारे वीविंग यूनिट्स अवेलेबल है, वो सारा का सारा बनता है कहाँ पे? विद इन द स्टेट ऑफ गुजरात ओनली। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं रिन्यूएबल पे। रिन्यूएबल इंडस्ट्री में वी ऑल नो that entire world is beautifully transitioning from the conventional sources of energy to the renewable sources of energy। कर रहा है ट्रांजिशन, चल रहा है अभी। गुजरात हैज़ गॉट अ वेरी नेचुरल एडवांटेज इन दिस। जैसे मन बोला ना कि सिरामिक्स में नेचुरल ज्योग्राफिक एडवांटेज है कि वो जो मिट्टी है वो मोरबी में मिलता है, वैसे ही अगर आप गुजरात का मैप को स्टडी करें तो यहाँ से एक रेखा पसार होती है। रेखा मतलब बॉलीवुड वाली रेखा नहीं, राइट? एक ट्रॉपिक पास होता है, दैट इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ, कौन सा? कैप्रिकॉन नहीं तो कैंसर। वेरी गुड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्कवृत्त, राइट? तो कर्कवृत्त का जो सूरज का जो एंगल है ना, तो उसमें बहुत सारा एडवांटेज है कि आप वहाँ पे सोलर पैनल्स के बड़े बड़े गीगावाट्स के पार्क लगे हुए हैं, तो वहाँ पे सारे, इसीलिए आप देखो सबसे बड़ा इंडिया का जो सोलर पार्क लगा है ना, दैट इज नोन एज चारण का। चारण का कहाँ आया? सुरेंद्रनगर के जस्ट अबव, यहीं पे, समवेयर ओवर हियर। इसके अलावा अडानी, रिलायंस फाउंडेशन, एसआर एनर्जी, नायरा ग्रुप, बहुत सारे सोलर प्लांट्स कहाँ पे लगे हुए हैं? इन एंड अराउंड कच्छ, बिकॉज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पासिंग ऑन टू द सेम रीजन। तो नेचुरल एडवांटेज है। पूरे भारत में अभी गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि भाई हम लोग अराउंड 380 गीगावाट्स का सोलर इंस्टॉलेशन लगाएंगे। उसमें से अराउंड 40 जितना गीगावाट्स का तो सिर्फ गुजरात लगा चुका है। तो विच मीन्स वी आर नेशनल लीडर
इन रिन्यूएबल्स। किसी ने नाम सुना है मोढेरा का? मोढेरा नाम सुना है? सूर्य मंदिर आया है वहाँ पे। तो गवर्नमेंट ने पिछले 4 या 5 सालों में उस पूरे गांव को सोलर पावर्ड विलेज बना दिया है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी है तो सही, अपना जीईबी का या टोरेंट का जो भी आपका जाता है वो तो है तो सही, बट पूरा गांव चलता है किससे? ओनली एंड ओनली थ्रू सोलर, अनकन्वेंशनल या तो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जिसको रिन्यू किया जा सके। सूरज की रोशनी कम होगी? कभी नहीं होगी, राइट? तो उस मोढेरा गांव को हमने, पूरे गांव को हमने सोलर पावर्ड विलेज घोषित कर दिया है। इसके अलावा हमारे घर पे सोलर रूफटॉप्स लगते हैं बिजली बचाने के लिए, गवर्नमेंट सब्सिडीज के आप बहुत सारे होर्डिंग्स देखते होंगे, राइट? तो पूरे इंडिया में जितना भी सोलर रूफटॉप्स लगा है उसका करीब करीब 18% ऑफ सोलर रूफटॉप्स, या तो 25 या 27% है, बट गुजरात इज नेशनल लीडर इन टर्म्स ऑफ सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशंस अक्रॉस दी इंडिया। तो ये हमारा स्ट्रेंथ है। केमिकल्स में मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, आप शायद मुझे ज़्यादा बता पाओगे, बिकॉज GSFC इज़ ऑल अबाउट केमिकल्स इंडस्ट्रीज ओनली। आपके बाजू में जो प्लांट है वो भी वन ऑफ दी प्रोमिनेंट प्लांट्स इन द एंटायर स्टेट ऑफ गुजरात एंड द एंटायर स्टेट ऑफ इंडिया है। तो उसमें ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बट कुछ फैक्ट्स अगर आपको मैं बता पाऊँ तो हम लोग यहाँ पे जिस जगह पे ये लोग एड्रेसिंग चल रहा है, दिस इज़ इंडियाज ओनली PCPIR। PCPIR क्या होता है? पेट्रोल, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन। तो गवर्नमेंट ने पूरा स्कीम निकाला है, यहाँ पे अगर किसी इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है तो वी आर गिविंग स्पेशल सब्सिडीज एंड स्पेशल लैंड रेट्स टू देम। आपके बाजू में ही अंकलेश्वर का पूरा बेल्ट है, वहाँ पे जो भी डाइज बनता है, केमिकल्स बनता है, डाइज मतलब कलर, आप तो मेरे से कहीं ज़्यादा समझते हैं इस बात। तो पूरा डाई मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, कलर मैन्युफैक्चरिंग, उसका 70% ऑफ डाई मैन्युफैक्चरिंग इज कमिंग फ्रॉम ओनली द स्टेट ऑफ गुजरात। ऑलराइट, देन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अगर किसी को मान लो खुदा न खास्ता किसी को हार्ट अटैक आ गया तो उसमें आपके बॉडी में एक छोटा सा डिवाइस लगेगा, वो क्या होता है? क्या बोलते हैं उसको? स्टेंट लगता है। तो पूरे भारत भर में जितने भी स्टेंट बनते हैं उसमें से 78% ऑफ स्टेंट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन लैंड ऑफ गुजरात। अहमदाबाद के आजू बाजू का जो एरिया है, समवेयर ओवर हियर, चांगोदर बोलते हैं हम लोग इसको, चांगोदर, बावड़ा, तो दिस बेल्ट इज बेसिकली फार्मास्यूटिकल हब ऑफ गुजरात। वहाँ पे इतना सारा दवाई बन के एक्सपोर्ट होता है, पूरे भारत भर में जितना भी दवाई बनता है उसका करीब 28% ऑफ द मेडिकल एक्सपोर्ट्स आर हैपनिंग थ्रू गुजरात ओनली। 78% ऑफ मेडिकल स्टेंट्स आर मैन्युफैक्चर्ड हियर। उसके अलावा दवाई बनाने के लिए आपको मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का ज़रूरत पड़ता है, तो वो भी करीब 53% ऑफ डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग होता है सिर्फ और सिर्फ गुजरात में। तो ये हमने कर ली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बाद। इसके अलावा एग्रो प्रोसेसिंग, ये जो आपका बेल्ट है डीसा, कोई है यहाँ पे? साबरकाठा, बनासकाठा, डीसा, तो वहाँ के जो पोटैटोज की क्वालिटी है ना वो बहुत ही गणमान्य और एकदम हाई क्वालिटी है। तो वहाँ पे बहुत सारे एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट्स लगे हुए हैं। पूरे गुजरात भर में अराउंड 30,000 छोटे मोटे एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट्स लगे हुए हैं, जिसका काम बहुत सिंपल है कि आपका फूड प्रोड्यूस को बेहतर बना के ऐसी कंपनीज को देना जो आगे जाके अपनी अपनी फूड प्रोडक्ट्स बना सके। ठीक है, तो वो सारा सोर्सिंग यहाँ पे होता है। 31% पूरे भारत भर का जो कॉटन बनता है, कॉटन मतलब क्या बोलते हैं? कपास, गुजराती में कपास कहिए આપણે, રૂ કહે ને, तो ये क्या बने છે તમારું ऑन एंड अराउंड दिस एरिया सुरेंद्रनगर। वहाँ पे बेसिकली क्या है कि मिट्टी जो है ना वो काली है, नहीं ब्लैक सॉइल बोलते हैं। चोटीला पर्वत में जो दूसरे में काढ़ो देखा है, ग्रीन ना देखा है, राइट, बिकॉज वो मिट्टी काली है। अरवली प्रोडक्ट माउंटेन रेंज, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, तो वो काली मिट्टी है, तो नेचुरली सूरज का जो रेज होता है उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। द मोर इट अट्रैक्ट द रेज ऑफ द सन, मोर इट गेट्स ब्लैक। वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा होती है, 45-46 डिग्री तो ऐसे ही पहुँच जाता है। बट दैट इन अ वे नेचुरल एडवांटेज है
एज फार एज द कॉटन प्रोड्यूस इज कंसर्न। तो वो एडवांटेज वहाँ पे हमको बहुत सारा मिलता है। तो 31% कॉटन बनता है, अराउंड 42% ग्राउंडनट कहाँ बनता है, गुजरात में। फिर आपका जो वरियाली आता है, वरियाली, राइट। तो आप अगर यू गो टू दिस, विजिट दिस एरियाज, हिम्मतनगर, साबरकाठा, बनासकांठा, वहाँ पे नेचुरल बेल्ट्स लगे होते हैं। इफ़ यू आर इवन रोमिंग ऑन द रोड्स ऑफ दिस एरियाज, यू विल गेट ब्यूटिफुल अरोमा ऑफ वरियाली, जीरू, नहीं जीरू ना बोलिए આપણે ગુજરાતીમાં, ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય ને પેલું ફેનેલ, ફેનેલ, राइट। तो अराउंड 78 और 78% ऑफ फेनल इज प्रोड्यूस्ड ओनली इन गुजरात। तो ये तो हो गई हमारे ओवरऑल इंडस्ट्रीज की बात। तो पूरे गुजरात भर में आप देखो तो यहाँ इंडस्ट्रीज फैली हुई है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी निकाले हैं, उसके बारे में थोड़ी मैं ज्ञान देना चाहूँगा। नंबर 1, गांधीनगर के बाजू में गिफ्ट सिटी करके बना है। एनीवन इज अवेयर अबाउट इट? गुजरात इंटरनेशनल फिनेंस टेक सिटी, राइट। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि छोटा सा एरिया बनाते हैं, उसको एक अलग स्वायत्त संस्था बना देते हैं। एंड हाउ वी आर प्रोजेक्टिंग इज कि पूरे भारत भर में जिस भी BFSI कंपनी होगी, मतलब बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर इनिशिएटिव्स होंगे, बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, बड़े बड़े बैंक्स हो गए, उसका एक ब्रांच यानी कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? गिफ्ट सिटी में। वहाँ पे SBI का हेडक्वार्टर ऑपरेट करता है, आज वहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका ऑपरेट करता है, बहुत सारे यूनिट्स वहाँ पे ऑपरेट करते हैं। अगर आप लोग वहाँ पे नहीं गए तो आई हम्बली विश यू कि एक बार जाके देखें कि एक्चुअल BFSI सेक्टर जो है वो कैसे प्रोग्रेस होता है। इसके अलावा ये भावनगर के बाजू में एक छोटा सा एरिया गवर्नमेंट ने एयरमार्क किया है, विच इज़ बेसिकली नोन एज धोलेरा, राइट। वहाँ पे गुजरात का फर्स्ट ग्रीन फील्ड SIR उसको घोषित किया गया है। मगर मतलब कि अगर आपको ज़मीन चाहिए वहाँ पे तो एक सब्सिडाइज रेट पे आपको मिल जाएगी। एंड करंटली सिंस लास्ट 1 ईयर वी द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात आर बीइंग प्रोजेक्टिंग धोलेरा एज सेमीकंडक्टर कैपिटल ऑफ इंडिया। तो आपका जो चिप्स बनता है, आपके सेलफोन में चिप्स लगता है, टेलीविजन में चिप लगता है, AC, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को चलाने के लिए आपको चिप बनाना पड़ता है। तो चिप कहाँ पे बनेगा? अभी पूरा साणंद जो बेल्ट है, ये वाला अहमदाबाद के बाजू में साणंद बेल्ट एंड धोलेरा। धोलेरा इज इंडियाज ओनली ग्रीनफील्ड स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। तो वो आपका धोलेरा में सेमीकॉन कैपिटल ऑफ इंडिया बहुत जल्द वो बनने वाला है। अभी बहुत सारे आपका माइक्रॉन हो गया, फिर अडानी का एक जो प्लांट आ रहा है, वो सारा का सारा प्लांट्स यहाँ पे ऑलरेडी इन इम्प्लीमेंटेशन है। देन देर इज़ वन प्रोजेक्ट नोन एज DMIC, ये यहाँ से जाता है आपका। DMIC मतलब दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो एक पूरा स्टेट नेशनल लेवल का हाईवे बन रहा है जो यहाँ से होके, मुंबई से होके, आपके वडोदरा से होके यहाँ से जाता है। तो आपका उसमें खंभात, अहमदाबाद, गांधीनगर, अरवली डिस्ट्रिक्ट, महसाणा, ये पूरा बेल्ट जो है उसके आजू बाजू इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होने का चांसेस वेरी हाई है, ठीक है। इसके अलावा मैं थोड़ा सा नॉलेज देना चाहूँगा एज इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ब्यूरो, जहाँ से मैं आता हूँ। तो व्हाट एग्जैक्टली वी डू, वी आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। मतलब आम भाषा में अगर बोला जाए तो अगर किसी भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर को गुजरात में इन्वेस्ट करना है, गुजरात में फैक्ट्री डालना है, गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना है, गुजरात में ऑफिस खोलना है, एंड इफ दे वांट टू टेक ए गवर्नमेंट रूट, देन द ओनली डॉर टू बी नॉक्ड इज इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ब्यूरो। वो है मेरा ऑफिस जहाँ से मैं आता हूँ, ठीक है। हमारा काम बेसिकली क्या है कि ये सारा डेटा जो है वो अपडेटेड रखना, इन्फॉर्मेशन हमारे पास रखना, एंड वेन एवर वी आर बेसिकली इन आम भाषा में बोले तो वी आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलिंग गुजरात, नथिंग एल्स। हम लोग गुजरात को बेच रहे हैं कि आपको गुजरात में आना है तो आपको सीमेंट का प्लांट लगाना है तो अहमदाबाद इज़ अ वंडरफुल प्लेस टू लिव, बट अगर आपको सीमेंट का प्लांट लगाना है तो आप अहमदाबाद में नहीं लगा सकते, आपको जाना पड़ेगा पोरबंदर। रीज़न इज़ कि सीमेंट का प्लांट लगाने के लिए आपको जो रॉ मटेरियल चाहिए यानी कि लाइमस्टोन वगैरह, तो वो आपको अहमदाबाद में नहीं मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा आपको? पोरबंदर, सिक्का, बेड़ी,
मतलब सौराष्ट्र साइड, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। ये हमारा काम है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग लोकेशन पूरा एनालिसिस करके देते हैं कि आपको वाई यू शुड इन्वेस्ट इन गुजरात, वी सेल गुजरात, वी डिलीवर देम प्रेजेंटेशंस, वी आर द नोडल ऑफिस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। तो अभी वीजी जो नेक्स्ट आएगा 2026 जनवरी में, उसका प्लानिंग हम लोगों ने अभी से शुरू कर दिया है कि अभी देश दुनिया कहाँ जा रहा है, हम लोग क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं, हम लोग का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कैसे हम लोग अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, वो हमारा एक्सरसाइज अभी से प्लानिंग फेज में शुरू हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा देयर इज़ वन यूनिट नोन एज इंटरनेशनल कोऑपरेशन यूनिट। तो ऑनरेबल सीएम को मिलने के लिए जितने भी लोग आते हैं, एम्बेसडर, सीजीज, उस मीटिंग में कहीं ना कहीं हम लोग वहाँ पे होते हैं। इन्वेस्टर को फैसिलिटेट करना, उसके ग्रीवेंस को सॉल्व करना, उसके ईओडीबी मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना, ये सारे के सारे हमारे काम हैं। इसके अलावा छोटा सा यूनिट रहता है हमारा बीआरसी करके, बिजनेस रिसर्च सेल, विच इज़ बेसिकली डूइंग रिसर्च ऑन जो भी इन्वेस्टर आ रहा है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन में तो निकालना पड़ेगा ना, देन एंड देन विल बी एबल टू सेल द थिंग्स अकॉर्डिंगली। तो बीआरसी इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर nagging and jotting down all the information about the said potential investors। ये हमारा काम है। Alright, now we'll move towards a छोटा सा एक एक्सरसाइज मैं आपसे चाहूँगा कि आपके सामने QR कोड, आई थिंक आपके फैकल्टीज ने भी आपको दिया है। मैं आपके लिए सुबह से इतना बोल रहा हूँ, आप मेरा थोड़ा सा काम कर दीजिए। आई एम परस्यूइंग माई PhD इन कम्युनिकेशन स्किल्स, और उसमें आपका जो डेटा है ना वो बहुत प्राइम है मेरे लिए। तो इफ़ यू कैन जस्ट इट विल नॉट टेक मोर देन 5 to 7 minutes ऑफ टाइम। इफ़ यू कैन जस्ट ओपन अप योर सेल फोन्स, गूगल लेंस में जाके इफ़ यू कैन जस्ट स्कैन दिस कोड, एक लिंक आएगा, एंड इफ़ यू कैन जस्ट फिल दिस सर्वे अप फॉर मी, इट विल नॉट टेक मोर देन 5 to 7 minutes ऑफ योर टाइम। पीछे से आर यू एबल टू स्कैन सर? ठीक है, विल टेक अ मिनट मोर बिकॉज मेनी ऑफ हेड्स आर येट डाउन। Okay, so now the first part of this storyline about knowing the industries of Gujarat, कि गुजरात में इंडस्ट्रीज कैसे कैसे फ्लरिश हुई, कहाँ कहाँ से आई, और कैसे कैसे हम लोग कंट्रीब्यूट करके पूरे भारत भर के GDP को आगे ले जा रहे हैं। दैट पार्ट इज बेसिकली डन विथ। एंड नाउ बिफोर मूविंग इनटू द सेकेंड पार्ट, एक बिकॉज आई एम अ कम्युनिकेशन स्किल्स कोच फर्स्ट, तो आजकल ना हम लोगों ने थोड़ा सा हंसना बंद कर दिया, लग रहा है आपको? हैं, पता नहीं इतना क्या हो गया कि एकदम सीरियस हो लगे हम लोग। तो एक इफ़ यू डोंट माइंड एक जोक सुनाऊँ आपको? हाँ, आवा दो ने अपन फेर पड़े या। तो एक बार क्या हुआ कि एक शेर और एक शेरनी दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, पसंद कर रहे थे, ठीक है। जोक है यार, लेट इट बी। शेर जो था ना वो थोड़ा सा शक्की था। कैसा था? शक्की था। तो उसने शेरनी से पूछा कि मैं आया उससे पहले तुम्हारी जिंदगी में कोई और था क्या? मैं आया उससे पहले तुम्हारी जिंदगी में कोई और था क्या? इसी बात पे शेरनी थोड़ा सा मुस्कुराई, थोड़ा सा शर्माई, और उसने जवाब दिया कि तुम्हारी इसी बात पे एक शेर याद आता है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल्स ऑफ स्लो ह्यूमर। धीरे धीरे समझ आएगा। ऑनलाइन अगर समझ में ना आया हो तो आई एम अवेलेबल आफ्टर 12, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, चलो नाउ वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन्स दैट आईड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस is how has the brand Vibrant Gujarat evolved. All right. So Vibrant Gujarat, the first edition of Vibrant Gujarat was held in 2003, around 21 years back. वहाँ पे जो स्टोरी लाइन जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ हमारा टैग लाइन सब कुछ बयां करता है। हाउ मेनी ऑफ अस एग्री टू दैट कि टैग लाइन जो होता है वो बहुत कुछ बयां करती है स्टोरी लाइन। तो 2003 में हमने ऐसा बोला कि वी आर री एस्टेब्लिशिंग गुजरात एज इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, कि आप आइए और
हमारे साथ जुड़िए एंड प्लीज़ इन्वेस्ट इन गुजरात। यहाँ पे शब्दों का खेल आप देखिए, जिसने भी बनाया हो कितना दूर का सोचा होगा। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट और वी वर नॉट टॉकिंग अबाउट एस्टैब्लिशिंग गुजरात। हमने क्या बोला? री एस्टैब्लिशिंग, मतलब एस्टैब्लिश तो हम लोग ऑलरेडी हैं। इट्स ऑल अबाउट री, मतलब अगेन गेटिंग अगेन देयर। वर्ल्ड कप तो हमने ऑलरेडी जीता हुआ है, अब तो चैंपियंस ट्रॉफी दोबारा जीतने की स्टोरी लाइन है। तो री एस्टैब्लिशिंग गुजरात एज फाइनली एज इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। इसके बाद स्टोरी आगे बढ़ता है 2005, सेम टैगलाइन। फिर 2007 में हमने थोड़ा सा चेंज किया कि मेकिंग गुजरात एज प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। अगेन शब्दों का खेल, री एस्टैब्लिश कर दिया, उसके बाद आपका प्रेफरेंस बना दिया। देन स्टोरी आगे बढ़ता है थोड़ा सा, मेकिंग गुजरात एज मोस्ट प्रिफर्ड, मतलब एक ही वर्ड हमने ऐड किया, प्रिफर्ड से क्या किया? मोस्ट प्रिफर्ड डेस्टिनेशन। देन अगेन स्टोरी आगे बढ़ता है 2011, शोकेसिंग गुजरात द ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया। और ये टैगलाइन हमने मोस्ट प्रोबेबली आज तक सरकार ने पकड़ के रखी है कि हमारे जितने भी प्रेजेंटेशंस होते हैं उसमें व्हेनेवर वी इंट्रोड्यूस द इंडस्ट्रियल सिनेरियो ऑफ गुजरात, द टैगलाइन इज द सेम, गुजरात द ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया। ठीक है, अगेन स्टोरी आगे बढ़ता है 2013 में, ग्लोबल बिजनेस हब, अ स्प्रिंग बोर्ड ऑफ ग्लोबल एम्बिशंस 2015, 2017 पोस्ट रिसेशन जब दुनिया खुल रहा था तो हमने क्या बोला? कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड। 2019 शेपिंग अ न्यू इंडिया एंड 2024 गेटवे टू द फ्यूचर। नाउ इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ मार्केटिंग, और अगर आप दुनिया को मार्केटिंग या सेल्स के नज़रिए से देख पा रहे हैं तो इसमें दो ऑब्जर्वेशंस आपके बहुत एप्ट होने चाहिए। नंबर 1, टैगलाइन इज गेटिंग शॉर्टर। अग्री विथ मी? पहले हम लंबे लंबे किया करते थे, री एस्टैब्लिशिंग गुजरात एज इन्वेस्टमेंट प्रमोशन डेस्टिनेशन, बहुत लंबा था। अब क्या बोल रहे हैं? गेटवे टू द फ्यूचर, छोटा होता गया। और अगर आपका अटेंशन स्पान स्टडी करे तो पहले आप जितना चीज़ों पे ध्यान दे पाते थे अभी उतना हम लोग नहीं दे पाते। किसी का अटेंशन ग्रैब करने के लिए हमारे पास वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम, तो क्यों इतनी लंबी बात करनी है? तो टैगलाइन भी छोटा हो गया। सेकेंड ऑब्जर्वेशन इफ यू आर एबल टू मेक इट, इनिशियली वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली अबाउट गुजरात गुजरात गुजरात। यहाँ पे देखो, गुजरात गुजरात गुजरात। अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं? गुजरात की तो बात ही नहीं कर रहे। पहले हमने गुजरात का स्टोरी बोला, उसके बाद इंडिया का स्टोरी बोला, स्प्रिंग बोर्ड ऑफ ग्लोबल, उसके बाद वर्ल्ड लेवल पे गए, ग्लोबल एम्बिशंस। तो मतलब पहले गुजरात, फिर इंडिया और फिर वर्ल्ड, शेपिंग अ न्यू इंडिया, कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड, तो ग्लोबल लेवल की बात है। और अब हम 24 में किसकी बात कर रहे हैं? गेटवे टू द फ्यूचर, मतलब आगे की सोच रखने की बात कर रहे हैं। और ये हमारा इन्वेस्टमेंट समिट जो होता है उसको स्टडी करने के बाद अराउंड 23 different states of India are having their own investment summits. I'm very happy and very glad to inform you all that Gujarat has been the pioneer states in organizing these summits. तो हमने शुरुआत 2003 में करी थी और हमको देख के काफ़ी सारे स्टेट्स सेम मॉडल पे अभी ये समिट्स अपने अपने कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। फाइन। नेक्स्ट थिंग, अगर आप थोड़ा सा स्टडी करना चाहे इस पूरे इन्वेस्टमेंट प्रमोशन मॉडल को, तो 2003 में जब शुरुआत की थी हमने, तो हमारे पास सिर्फ 5 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस थे, सिर्फ 125 फॉरेन डेलीगेट्स, सिर्फ 125। हाँ, उस ज़माने में बहुत बड़ा नंबर था ये, बट सिर्फ 125 फॉरेन डेलीगेट्स आए थे हमारे समिट्स में, 30 एग्जीबिटर्स और छोटा सा एग्जीबिशन हमने लगाया था। उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है 2005 में, तो हमारे पास पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया।
देन डेट्स जो था वो पहले करीब करीब अक्टूबर मतलब नवरात्रि के टाइम पे था। फिर हमको ज्ञान हुआ कि अच्छा नवरात्रि के टाइम पे शायद पूरा कल्चरल सेंटिमेंट जो होता है लोगों का वो हाई रहता है, शायद कमर्शियल सेंटिमेंट उतना हाई नहीं है। तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो हम लोग ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट समिट को अक्टूबर से लेके कहाँ ले गए हम लोग, जनवरी में। फॉरेन डेलीगेट्स बढ़ते गए। फिर हमने क्या किया कि आप एक काम करो, सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात मत करो, हम लोग नॉलेज शेयरिंग का भी एक प्लेटफॉर्म देते हैं। तो हमने सेक्टर स्पेसिफिक सेमिनार्स का, जैसे हम लोग और आप बात करें तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ सेक्टर स्पेसिफिक सेमिनार कि नो द इंडस्ट्रीज ऑफ गुजरात। एक टॉपिक दिया गया है और उस पर हम लोग बात कर रहे हैं, राइट। तो इसकी शुरुआत 2005 में गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने ऑलरेडी कर दी थी। एग्जिबिटर्स बढ़ते गए, एग्जीबिशन एरिया थोड़ा सा बढ़ा और वेन्यू जो था वो हमारा टैगोर हॉल अहमदाबाद में एक छोटा सा हॉल है, इतना भी बड़ा नहीं है शायद, वो छोटा, इससे भी थोड़ा सा छोटा है, उससे हम लोग लेके गए साइंस सिटी पे। ये स्टोरी अगर वाकई जानना है तो आपके जो तनेजा साहब है, राइट, ही हैज़ बीन वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंटल ऑफिसर्स इन द एंटायर स्टोरी लाइन। तो उनका जो नॉलेज है ना वो ऑब्वियसली फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन और मेरे से कहीं ज़्यादा क्वालिफाइड है, और मेरे से कहीं ज़्यादा क्वालिफाइड भी है वो इन टर्म्स ऑफ डेजिग्नेशन, इन टर्म्स ऑफ ऑरा, इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी टू एड्रेस यू। तो उनके वो तो पूरा इन्फॉर्मेशन लेके बैठे हैं, तो उनके पास ऑब्वियसली मेरे से कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में होगा कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था। मेरे पास तो सिर्फ पीपीटी स्लाइड्स और मैंने जितना पढ़ा उतना इन्फॉर्मेशन है। 2007 में स्टोरी आगे बढ़ता है, थोड़ा सा अप्रोच हमने फोकस्ड किया, थोड़ा सा जोग्राफिक रीच जो है, डेलीगेशंस यहाँ से जाने शुरू किए। 2009 इंट्रोडक्शन टू पार्टनर कंट्रीज, तो हमने ये बोला कि भाई आप हमारा पार्टनर कंट्री बनिए। जापान जो था वो वन ऑफ द फर्स्ट पार्टनर कंट्री था हमारा 2009 में। यहाँ पे आकर के वी विल प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू यू, यू एडवर्टाइज योर प्रेजेंस एंड यू एड द वैल्यू टू द एंटायर समिट। तो ये बात हुई 2009 में। उसके बाद 2011 इंट्रोडक्शन टू कंट्री स्टेट सेमिनार्स, हमने अलग अलग स्टेट्स को भी कांटेक्ट किया कि आप भी हमारे साथ जुड़िए और अपना प्रचार कीजिए कि नॉट ओनली इन गुजरात बट हम लोग कलेक्टिव एक वे में आगे बढ़ना चाहते हैं, नहीं कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड, नॉट कनेक्टिंग गुजरात टू द वर्ल्ड। तो हमने स्टेट्स को भी इन्वाइट करा, हमने कंट्रीज़ को भी इनवाइट करा, हमने ऑर्गेनाइजेशंस को भी इनवाइट करा और हमने कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस को भी इनवाइट करा। और वेन्यू जो था अभी जहाँ पे समिट हो रहा है वो है महात्मा मंदिर। तो 2011 में वेन्यू फ्रॉम साइंस सिटी वॉज शिफ्टेड टू महात्मा मंदिर। बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर है वहाँ पे पूरा वेन्यू हमने शिफ्ट करा था। उसके बाद स्टोरी थोड़ा सा आगे बढ़ता है। 2013 पार्टनर कंट्रीज, पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन को हमने और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, वो लोग और हमारे साथ जुड़े, हमको एक्टिव एंड रियली नॉलेजेबल इन्वेस्टमेंट पार्टिसिपेंट मिलना वहाँ से शुरू हुआ। टोटल पार्टिसिपेशन डेलीगेट्स जो 125 थे, तो टोटल इंडिया, गुजरात और वर्ल्ड के मिला के हमारे पास उस वक्त अराउंड 50,000 डेलीगेट्स ने उन 3 दिनों में पार्टिसिपेट करा था। 2015 में हमने लॉन्च किया इंडियाज़ फर्स्ट ग्लोबल सीईओ कॉन्क्लेव, मतलब कि जितने भी अच्छी अच्छी कंपनीज है ग्लोबल लेवल पे उनके सीईओज को हमने गांधीनगर में न्योता दिया कि आप यहाँ पे आइए एंड लेट अस नो अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स, कि आपके हिसाब से दुनिया की इंडस्ट्री कहाँ जा रही है आप बताइए। तो उसमें वर्ल्ड बैंक से लेके बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज के सीईओज आए थे एंड दे leverage this platform to show and display their knowledge. 2017 India's first ever Nobel laureate dialogue. आपको शायद पता होगा नोबेल प्राइजेस दिए जाते हैं हर साल, और प्राइजेस देने के बाद शायद वो इंडियन नोबेल लॉरिएट जो थे वो क्या करते वो किसी को पता होता नहीं है। हमने क्या किया कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक एरियाज में सारे नोबेल लॉरिएट्स को बुलाया ग्लोबल लेवल पे एंड वी इनिशिएटेड अ डायलॉग कि आप अभी आपको नोबेल प्राइज़ तो मान लीजिए 2000 की साल में मिल चुका है, पर आप अपने एरिया में अभी क्या कर रहे हैं वो दुनिया को बताइए। तो एक पूरा अलग कॉन्सेप्ट था और वो हमने 2015 में लॉन्च करा था। इसके अलावा हमने ग्लोबल लेवल पे लेके गए एंड वी ऑल्सो स्टार्टेड गिविंग इम्पेटस
टू दी MSMEs ऑफ गुजरात, कि हमारे जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं उसका भी तो डेवलपमेंट हमने सोचना था। तो स्टोरी ऐसे 2017 में ऐसे आगे बढ़ा। 2019 में हमने अफ्रीका डे, मतलब अफ्रीका इन द सेंस ज्योग्राफिकली एंड इकोनॉमिकली दे आर ऑन लिटिल वीकर साइड देन इंडिया, तो हमने उनको भी हमारे साथ जुड़ने का न्यौता दिया। एंड 54 कंट्रीज में से 52 अफ्रीकन कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स गुजरात में आए थे, एंड दे स्टार्टेड डिस्कसिंग बिजनेस विद गुजराती कम्युनिटी यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म ऑफ वाइब्रेंट गुजरात। और 2000 फिर कोविड आया तो उसमें एक आध समिट हमने मिस करा बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन वेव। 2024 की हम लोग बात करें, जो अभी जनवरी में एक साल पहले समिट हुआ था, तो उसमें फ्रॉम 2 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस टू वी हैव 35 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस। फ्रॉम 0 पार्टनर कंट्रीज इन 2003 नाउ वी हैव कितनी पार्टनर कंट्रीज लिखी है? 35 पार्टनर कंट्रीज, 21 सेमिनार्स, बहुत सारे कंट्री सेमिनार्स, उतने ही कंट्री सेमिनार्स, बहुत सारे स्टेट सेमिनार्स भी हमने लॉन्च करे। एग्जीबिटर्स जो सिर्फ 30 थे 2003 में, वो 30 के फिगर को हम लोग लेके आए 2000 तक। एंड फुटफॉल जो है वो डेलीगेट्स का अराउंड फर्स्ट समिट जो था उसमें अराउंड 500 का फुटफॉल था, और इस 2024 के समिट में दैट फुटफॉल हैज ट्रेमेंडसली इंक्रीज टू एटलीस्ट 150,000 पीपल। दैट इंक्लूड्स बिजनेस लीडर्स, इंक्लूड इंडस्ट्री कैप्टन्स, इंक्लूड इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स एंड स्टूडेंट्स। बहुत सारे लोग एग्जीबिशन में आते हैं एंड उसका फ़ायदा उठाते हैं इन टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग एंड इन टर्म्स ऑफ लुकिंग एट वेयर एग्जैक्टली द इंडस्ट्री वर्ल्ड इज गोइंग और हेडिंग टूवर्ड्स। अगर नंबर्स की बात करें तो 24 में हमारे पास पार्टनर कंट्रीज 35 थी, 13 स्टेट सेमिनार्स हम लोगों ने लॉन्च करे थे, 36 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस के सेमिनार्स हमने लॉन्च करे थे, 21 सेक्टर स्पेसिफिक सेमिनार्स, 61,000 प्लस पार्टिसिपेंट्स। इसके अलावा वेन एवर अ कंपनी रजिस्टर्स विथ द पोर्टल ऑफ वाइब्रेंट गुजरात, we ask them 2 things. Number 1, what are they offering? And number 2, what are they looking for? And then is a backend portal which matches these 2 services और आपको सजेशन देते हैं कि भाई आपको ABC कंपनी है, अगर आपको गाड़ी का बिजनेस है, अगर आपने लिखा है कि भाई आई एम लुकिंग फॉर ऑटो एंसिलरी मैन्युफैक्चरिंग, और अगर किसी और ने XYZ कंपनी ने ये लिखा है कि दे आर इनटू ऑटोमोबाइल ancillary units manufacturing and they are looking for to meet the car manufacturers, तो the portal itself matches does the matchmaking और आपकी हम लोग वर्चुअल B2B मीटिंग्स करवाते हैं। तो बेसिकली हमारा काम है हैंडशेक्स करवाना, फिर आगे ABC कंपनी एंड XYZ कंपनीज वो लोग बिजनेस कर सकते हैं। तो इतने सिर्फ 3 दिन में गवर्नमेंट ऑफ गुजरात है सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड 2,862 B2B मीटिंग्स। इसके अलावा हमने ये भी न्यौता दिया था कि अगर आपको सरकार से कुछ बात करना है तो B2G मतलब बिजनेस टू गवर्नमेंट मीटिंग्स भी आप कर सकते हैं। तो हम लोग को बहुत सारा अच्छा रिस्पॉन्स मिला एंड मैनी लीडिंग कॉन्ग्लोमरेट्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड हैड रजिस्टर्ड फॉर दिस B2G मीटिंग, और इन लिमिटेड टाइम में हमने सक्सेसफुली 1368 B2G मीटिंग्स भी करवाई है। तो द स्टेट गवर्नमेंट बाय दिस वे is promoting investment in order to give the impetus to the rising industrial landscape of the state of Gujarat. Alright, तो ये जो कहानी थी ये मुझे आज आपसे शेयर करने के लिए यहाँ पे बुलाया गया है। अब thank you so much. And during all my workshops, I was also having a word with one of your senior faculties over here. मैंने यही बोला कि मेरा काम ज्ञान देना तो one of the sides of a presentation है, but I want to know about you guys कि मेरे पास तो जैसे presentation में आपने देखना कि मुझे आप गुजराती में कही ने खारी ने तीखी ने मोड़ी ने बધી વસ્તુ બનાવતા આવડે છે, તમારે શું ખાવું છે ને તમે મને કહો તો વધારે મજા આવશે, right? So I'm leaving the house open for any questions that we may have.
from the students, from the faculties, from the senior representatives in the house. Any question that I may be able to address in whatever limited capacity that I have. Any random questions are also welcome. No silly answers and no silly questions, because this is a very प्रोफेशनल सेटअप आई वुड से. और हंसी मजाक मैं थोड़ा करता रहता हूँ, बट एज फार एज माई जॉब इज़ कंसर्न, माई वर्क इज़ कंसर्न, आई विल बी अल्ट्रा सीरियस. तो आई एम गारंटिंग यू कि अगर आप कुछ भी सवाल पूछोगे, आई विल नॉट मेक यू अ लाफिंग स्टॉक. डोंट वरी. यस. First of all, thank you, sir, for this enlightening session. So, sir, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक स्टूडेंट लेवल पे कोई स्टार्टअप कर रहा है और उनको B2G या कोई बड़ी कंपनी है, उन्हें B2B मीटिंग करनी है, so can they register for the VGGC when you conduct it for the next time? Sir, your name, sir? Vandan Joshi. जोशी साहब, माई सिंपल आंसर टू इज़ कि बैठिए, आप बैठिए, कि आपका कहना है कि अगर आप एक स्टार्टअप है और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप B2B मीटिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. माई आंसर इज़ वेरी सिंपल, मोस्ट वेलकम. ऑलराइट. नो बार. देखिए, गवर्नमेंट को ना कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप छोटा मोटा स्टार्टअप है, एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, डजेंट मैटर. तो यू रजिस्टर योर सेल्फ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट कि आप स्टार्टअप अपना रजिस्टर करवा लें, क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन में आईडी में GSTIN नंबर हम लोग कभी कभी मांगते हैं. अगर आपका नंबर रजिस्टर्ड है, या तो MOC मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ आप रजिस्टर करवाएं. इफ़ यू आर रजिस्टर्ड स्टार्टअप, यू आर मोस्ट वेलकम टू रजिस्टर्ड ऑन दी वाइब्रेंट गुजरात पोर्टल. उसी पोर्टल के अंदर आपको पूछा जाएगा कि आपका बिजनेस बेसिकली क्या है. वो नहीं शार्क टैंक जो होता है, शार्क टैंक में पहले पूछ लेते हैं ना कि आपका बिजनेस क्या है, आप क्या शार्क से आप क्या चाहते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, शार्क का रोल क्या रहेगा, वो सब कुछ उनको पूछा जाता है एडवांस में. सो सिमिलरली दिस पोर्टल ऑल्सो आस्क्स यू अबाउट द वेयरअबाउट्स ऑफ योर बिजनेस, कि आप एग्जैक्टली क्या है, आपका प्रमोशन क्या है, आपका मार्केट पोजीशनिंग क्या है, आपका एक्सपोर्ट है, इंडिया में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं कि बाहर आप ले जाना चाहते हैं, आप कौन सी ज्योग्राफी के साथ बात इनिशिएट करना चाहते हैं, एंड एग्जैक्टली व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. उसमें मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं कि आपको कंसल्टेंसी चाहिए, आपको हार्डकोर सेलिंग ऑप्शंस चाहिए, आपको मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइडर्स के साथ मिलना है, क्या करना है. यू सिलेक्ट दिस एंड द पोर्टल इटसेल्फ विल डू द मैच मेकिंग. और आपको बहुत सारे ईमेल्स में नंबर्स आने लगेंगे कि भाई आप वंदन साहब है तो आपको क्षितिज भाई से मिलना चाहिए, आपको जोशी साहब है आपको त्रिवेदी भाई से मिलना चाहिए, एंड उसका नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करते हैं. बाद में आप जानो वो जाने, वो मैच मेकिंग आप कर सकते हो. एंड इफ यू आर कमिंग टू दिस समिट बीइंग अ रजिस्टर्ड एंट्रेंट, तो आप वहाँ पे आके भी बात कर सकते हो. वहाँ पे हम लोग बहुत अच्छा मीटिंग्स रूम भी प्रोवाइड करते हैं. आपको कुछ साइन करना है, फील फ्री टू डू इट. आपको बात करनी है, फील फ्री टू डू इट. आपको सिर्फ हैंड शेक करना है, फील फ्री टू डू इट. बट डोंट थिंक कि यू आर जस्ट अ स्टार्टअप, बिकॉज फॉर द स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टअप्स आर अ वे टू लुक एट the entire where the future businesses are going, right? तो you are most welcome, और ऐसा कोई बार नहीं है. I trust I'm answering your question right way. Yes, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you. Anyone else? I see movements of people, but I cannot recognize the hands moving, waving at me. No one else? So shall we wind up then? Okay, because I was told that. Okay. All right. So again, thank you very much for all your patience, and having me here was, in itself an honor to me. Having me here and to be able to address this wonderful crowd. Thank you also very much for filling up the survey. यहाँ से जाने के बाद presentation यहाँ पे ही रहेगा, और ऐसा हो तो मैं QR कोड यहाँ पे रखूँगा. If at all anyone is unable to scan that QR code from the back side, आप करके वो survey fill up कर सकते हैं, no problem. It will be of tremendous support to me and my PhD research. And I am also extremely thankful to the management of the GSFC University to invite me and to consider me capable of addressing the students in masses.
and I trust and I hope I have added some value to your careers. लास्ट में जाते जाते मेरी 2 फेवरेट लाइन्स हैं, मैं जनरली सब स्टूडेंट के साथ शेयर करता हूँ, आपके साथ भी करूँगा. तो किसी शायर ने खूब कहा है कि मैं चांद सितारों से आगे हूँ, मैं ज़मीं आसमानों से आगे हूँ. मैं चांद सितारों से आगे हूँ, मैं ज़मीं आसमानों से आगे हूँ. सबसे कितना आगे हूँ शायद मुझे नहीं मालूम, पर मैं कल जहाँ था आज वहाँ से आगे हूँ. राइट. थैंक यू वेरी मच अगेन. एंड आगे की फॉर्मेलिटीज़ के लिए ओवर टू यू मैम. Good morning, everyone. It is my privilege to extend a heartfelt vote of thanks to Mr. Kshitij Trivedi for his enriching session today. Sir, your expertise and insightful discussion on knowing the industries of Gujarat have been both enlightening and inspiring. Your ability to break down complex ideas into relatable and practical knowledge has not only broadened our understanding, but has also sparked a deeper interest in the subject. The valuable examples and actionable insights you shared will undoubtedly leave a lasting impact on all of us. On behalf of everyone present here, I express our deepest gratitude for taking the time to share your knowledge with us. Thank you all and have a wonderful day ahead. Now I would request Dr. Sindura to facilitate sir with a memento.